bless you on this day, and may God bless the country on this day. So let us have a small prayer on this day. I will say the prayer and you have to repeat it. O God, we come before you today, to pray for a spirit of courage, sacrifice, and hard work. Make our hearts full of love and respect for our national flag and for every Indian who respects this banner. O God, help us to be responsible and dutiful. Help us to be honest and hardworking, so that we will be just one nation under one flag.
To one and all present over here, I, Mohammad Hassan Ansari, standing before you all, wishing a very happy Republic Day. So classes, get ready for slogan. Stand at ease. Again, say, Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. 26 January. 26 January. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Subhash Chandra Bose. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके हाथों में गंगा और होठों में तिरंगा
मांगा है, वो देश जो सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार देशवासियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। A very happy and cheerful good morning to all of you present over here, respected director sir, principal ma'am, our chief guest, and all the teachers and dear friends. I, Ratika Yadav, school captain, present over here to give the speech on Republic Day, which is also called 26 January. Today, as you all know, that we are gathered here to celebrate the 74th anniversary of country's constitution and to honor the sacrifice for all those who fought for our country's freedom. The Constitution of India that lays down the fundamental principles and laws of our country. It defines the right duties of the citizens and establishes the framework of our country. We must work together creating a country or a society that is inclusive and equal, where everyone has equal right and opportunity to succeed and reach their full potential. Let's pledge our best part building the better India, not better but the best India. Let's work together creating a society that is free from discrimination and the great people who have made the supreme sacrifices. I personally salute to all of them. ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में नफरत है, निकालो इसे। ना तेरा, ना मेरा, ना इसका, ना उसका। ना तेरा, ना मेरा, ना इसका, ना उसका। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। That's all. जय हिंद, जय भारत। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। रूप गंगा की हिमालय का बदन आज़ाद है। गंगा की हिमालय का वतन आज़ाद है। रूप गंगा खेतियाँ सोना उगाए, वादियाँ मोती लुटाए। 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 आज गौतम की सभी तुलसी का वन आज़ाद है। आज गौतम की सभी तुलसी का वन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। दूर गंगा की हिमालय का वतन आज़ाद है। गंगा की हिमालय का वतन आज़ाद है। मंदिरों में शंख बजे, मस्जिदों में हो अज़ान। मंदिरों में शंख बजे, मस्जिदों में हो अज़ान। मंदिरों में शंख बजे, मस्जिदों में हो अज़ान।
उजड़े अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। Good morning, all of you. So, after such a lovely performance, now I would like to invite our director, sir, to introduce our chief guest. Although he needs no introduction, everybody is knowing him. Still, I would request our director, sir, to introduce our chief guest. Sir, please. I am feeling very proud today that one of the students, he is the chief guest of this program. Do you know Siddharth Ray? How many of you know Siddharth Ray? Very less. But he is well known to Hajipur, even in the country also. Siddharth Ray यहाँ के स्टूडेंट थे और उसके बाद जो है यहाँ से जाने के बाद उन्होंने MBA किया और MBA में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और उसके बाद जब इनको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिले, इन्होंने कुछ दिन काम भी किया और गवर्नमेंट सर्विस भी किया इन्होंने, रेलवेज में भी सर्विस किया इन्होंने। लेकिन सिद्धार्थ राय का सोचने का ढंग कुछ और था। उनको कोई भी बात जो है वो अच्छी नहीं लगी। He wanted peace and actually he was born to help people. ये शायद इसीलिए पैदा हुए थे कि लोगों की सेवा करें और इसीलिए ये इन्होंने सब कुछ ठुकरा के I think after 5 years he came back to Hajipur in his village. इनके विलेज में बैरन लैंड थी जिसमें कुछ उगता नहीं था, कुछ पैदा नहीं होता था। उन्होंने उसको डेवलप किया। एक उन्होंने पॉन्ड बनाया जिसमें मछलियाँ पाली और 2 गाय पाली और उसके बाद से ये बैरन गांव जो है वो बढ़ता गया और ये ऐसा हो गया कि इसमें अब लोग जाने लगे पिकनिक के लिए, विजिट करने के लिए। इवन शादियाँ भी जो है इन्होंने लोगों वहाँ भी शुरू हो गई। सिद्धार्थ राय का एक ही लक्ष्य था, वो लोगों की सेवा करना और ख़ासकर गरीबों की। उन्होंने वहाँ पे एक प्रभु की रसोई भी शुरू किया, इसमें रोज़ गरीब लोग दोनों वक्त का खाना खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सब बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ राय। उनका लक्ष्य ही मानव सेवा था। उनको न किसी नौकरी में कोई इंटरेस्ट आया न किसी में, उन्होंने सिर्फ मानव सेवा को ध्यान में रखा। और ये सब जो है वो इतना करने के बाद उनको जो है वो देश ने भी उनको पहचाना, पूरे भारत में उनको पहचाना। और अभी थोड़े दिन पहले 13 जनवरी को इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 13 जनवरी को गुजरात में और सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर he presented the award to him. So it is really a moment of proud for all of us, for Usha Faiz and for the students and for the staff, that our one of the students has achieved this much position. एक बात और बता दूँ, जब यहाँ पढ़ते थे, छोटे थे, तो अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। इनको मैडम फैज पकड़वा के बुलवाती थी।
और फिर उसके बाद भागने के बाद भी इन्होंने इतना जो है वो काम किया कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप भी भागना शुरू कर दें कि भागेंगे सब। सो आई नाउ रिक्वेस्ट Siddharth Rai to please say a few words of blessings to all of you. अपना आशीर्वाद दें तुम लोगों को। मुझे आज यहाँ पर बोलते हुए समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले बोलना शुरू करूँ या पहले रोना शुरू करूँ। अभी सर ने बताया कि मुझे देश का सबसे बड़ा किसी युवा को मिलने वाला जो पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, वो मुझे मिला। लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको अपने विद्यालय में बुला करके ये सम्मान दिया जाए, वो चाहे विश्व का क्यों ना सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाए, वो उसके आगे छोटा ही नजर आएगा उसे। जिस विद्यालय से आप पढ़ाई करके निकलते हैं और जब आप कुछ अच्छा करते हैं, उसके बाद जब ये लेटर आपके स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर द्वारा लिख करके उस पर साइन करके और आपके घर भेजा जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तब भी रोना नहीं आया था जब मुझे सैकड़ों पुरस्कार मिले थे, लेकिन आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ाई करी और मेरे जैसे फेलियर को यहाँ पर बुला करके इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। आज जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो सभी बच्चों से बात करूँगा, लेकिन विशेष रूप से अगर आज मैं बात करूंगा तो मेरे उन सभी छोटे भाई बहनों से बात करूंगा जो फेलियर हैं, जिनको लोग कहते हैं कि तुम पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिनको लोग कहते हैं कि तुम खुद तो फेल हो जाओगे लेकिन हमारा भी नाम खराब करोगे, जिनको लोग ऐसा कहते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो अपने सब्जेक्ट में तो पता नहीं तुम क्या करोगे, फेल हो जाओगे, लेकिन हमारे सामने भी एक लाल रंग का गोला बना जाओगे। ऐसे बच्चों से मैं आज यहाँ पर बात करने आया हूँ। सर ने बताया कि मुझे MBA में गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन सर को शायद ये बताना अधिक अच्छा नहीं लगा या उनको याद नहीं होगा कि मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था। इस स्कूल में नहीं हुआ था, मेरी मॉन्टेसरी LKG UKG फर्स्ट स्कूल में हुई, उसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया और जिस स्कूल में था मैं वहाँ हाई स्कूल में मैं फेल हो गया था। और जब हाई स्कूल में मैं फेल हो गया तो उस स्कूल ने मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया। फिर मैं कई स्कूलों में गया एडमिशन के लिए, लेकिन कोई भी मुझ जैसे फेलियर को अपने स्कूल में लेना नहीं चाहता था। फिर मैं घूम फिर कर वापस से अपने पुराने स्कूल में यानी यहाँ पर आया। और ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, जिसमें आज डायरेक्टर सब बैठते हैं, उस टाइम आप हम लोगों के प्रिंसिपल हुआ करते थे। सर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और बाएं तरफ एक सोफा लगा करता था, और जिनकी यहाँ पर फोटो लगी है ना, उस टाइम जिंदा थी। बहुत संघर्ष उन्होंने भी किया था, उनके कोई खुद के बच्चे नहीं थे, उन्होंने हम लोगों को बच्चा माना था। मैडम वहाँ पर बैठी थी, मैं अपने पापा के साथ आया था यहाँ एडमिशन लेने के लिए टाइम। सर ने कुछ नहीं पूछा, मुझे एडमिशन दे दिया इस स्कूल में। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये दोबारा से फेल हो जाएगा, तो जब अब बाद में रिजल्ट निकलेगा तो उसमें 99% हाई स्कूल का रिजल्ट साफ है इसका रहेगा, ऐसा लिखा होगा, क्योंकि शायद मैं फेल दोबारा से हो सकता था 10th में यहाँ पर भी आकर के।
लेकिन सर ने मुझे मौका दिया दोबारा से इस स्कूल में पढ़ने का। मैडम चुपचाप बैठी थी वहाँ पर और वो सारी चीज़ों को देख रही थी। उन्होंने कुछ भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। मैं फेलियर था। जब मैं यहाँ पर पढ़ने आया, 10th में मेरी पढ़ाई शुरू हो गई, तो मेरे घर के अगल बगल के लोगों ने अपने बच्चों से कहा कि उसके साथ आप बातचीत बंद कर दो, उसकी संगत में मत रहो, क्योंकि वो तो फेलियर है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी फेलियर हो जाओगे। क्योंकि सब बच्चों के पेरेंट्स उनको ये सिखाते हैं कि हमेशा अच्छी संगत में रहो, पर पता नहीं क्यों पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि सब बच्चों की बुद्धि एक बराबर नहीं होती है और हर बच्चा एक परिस्थिति से होकर के नहीं गुजरता। बुरी आदत नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन पढ़ाई में अगर कोई कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी संगत खराब है। मेरे साथ कोई कोचिंग पढ़ने नहीं जाता था, मैं साइकिल से अकेले जाता था। कभी किसी दिन कोचिंग में नहीं गया तो मुझसे अपने नोट्स भी कोई शेयर करना पसंद नहीं करता था। मैं चाहता था कि पढ़ाई के दौरान कोई मुझसे डिस्कशन करे कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या नहीं पढ़ा, लेकिन कोई मुझसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये तो खुद गधा है, फेल हो चुका है, इसके साथ हम शेयर करके अपनी पढ़ाई को क्यों खराब करें। कोई नहीं आता था मेरे पास। मुझे याद है, आज आप सबने देखा हो कि मैं विद्यालय में आया हूँ तो मेरे पास एक बड़ी इनोवा कार है, सफ़ेद रंग की, अभी नई खरीदी है मैंने। इसके पहले भी 4 गाड़ियाँ मैं बदल चुका हूँ। लेकिन मेरे पापा एक सरकारी छोटे कर्मचारी थे, उनके पास एक बजाज का पुराना स्कूटर था जिसको कई बार वो पेंट कराते थे, नया करके उसमें पेट्रोल डलाकर चलते थे। सर जानते होंगे मेरे पापा को, राजेश सर, अक्सर सब लोग जानते हैं। जब मैं अपने पापा मम्मी के साथ जाता था हाई स्कूल में, जब यहाँ पढ़ता था, तो उनके दोस्त लोगों के घर पर, तो वहाँ उनके ड्राइंग रूम में उनके बच्चों द्वारा जीता हुआ कई पुरस्कार और मेडल सजा कर रखा जाता था। मुझे देखकर लगता था कि मेरे पापा मम्मी का भी तो मन करता होगा कि मैं भी कोई पुरस्कार जीत करके आऊँ और वो भी अपने ड्राइंग रूम में उस पुरस्कार को लगाएं। लेकिन मेरे पास तो कोई पुरस्कार था ही नहीं, क्योंकि मैं तो फेलियर था ना। मेरे पापा मम्मी कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाते थे, लेकिन सर लोग जानते हैं कि उनसे पूछ करके कि कौन गाजीपुर में अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है, कौन मैथ्स अच्छा पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश अच्छा पढ़ाएगा, मुझे अपने स्कूटर पर बैठा करके अलग अलग कोचिंग पर जाते थे। संतोष सर पीछे खड़े हैं, जानते हैं वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद सबसे बड़ा पुरस्कार तो मैंने जीता है अभी, लेकिन ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ना, मैं अपने साथ लेकर के आया, ये चोरी का पुरस्कार है, जिसको मैंने 25 रुपए में मिश्र बाजार में एक दुकान है स्पोर्ट्स की, आप लोगों ने देखा, क्या नाम है, विजय स्पोर्ट्स, बहुत पुरानी दुकान। मैं वहाँ पर गया और ये 25 रुपए दे करके इस झूठे इनाम को खरीद कर लेकर अपने घर आया और मैंने पापा मम्मी को कहा कि मैंने इस स्कूल में इस पुरस्कार को जीता है। जानते हैं क्यों कहा? इसलिए ताकि मेरे मम्मी पापा को थोड़ा तो अच्छा महसूस हो, खुशी महसूस हो कि उनके बच्चे ने अपने स्कूल में किसी चीज़ में ये पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार को लाकर मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा दिया, और जब भी मेरे घर कोई आता था तो मेरे पापा मम्मी बताते थे खुश होकर कि ये सिद्धार्थ ने जीता है। लेकिन मैं जब इसको देखता था तब मुझे लगता था कि सबको तो मैंने झूठ बोल दिया और सब यही जानते हैं कि ये मैंने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मैंने जीता नहीं है, ये तो चोरी का है, इसको मैंने खरीदा है 25 रुपए। जितने दिन मैं इसको देखता था मुझे हमेशा से मन में ये इच्छा आती थी कि मुझे इस झूठे पुरस्कार से बढ़कर अच्छा असली पुरस्कार जीतना है। मैंने संघर्ष, हाई स्कूल का रिजल्ट आया यहाँ का, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मैं हाई स्कूल में इस स्कूल में पास हुआ 3rd डिवीज़न यहाँ पर पास हुआ था। 11th 12th मेरा यहाँ से हुआ
कुछ अच्छा माहौल मुझे मिला, थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस आया। प्रीति मैडम के पास मेरा आज सर्टिफिकेट भी है 12th का, हो गया था मुझसे। मैंने कहा था मैडम उसको रखिएगा। मैडम उसको खोल कर देखेंगी तो उसमें मैं 2nd डिवीज़न पास था इसी स्कूल से। मेरे घर वालों को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा। और 12th के बाद मुझे क्या करना है मैंने इसके बारे में भी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं कभी पास ही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सब लोग मुझे फेलियर बोलते थे, सब मुझे फेलियर बोलते थे। कोई मेरे साथ टिफिन खाना नहीं पसंद करता था, मेरे साथ बेंच में बैठना पसंद नहीं करता था। मैं घर से स्कूल आने के लिए निकलता था, लेकिन अपने घर की दुछत्ती में जाकर बैठ जाता था और 6 घंटे बैठता था छिपकली के बीच में, और फिर निकलकर उतरकर मम्मी से कहता था मम्मी मैं घर आ गया। मैं स्कूल इसलिए नहीं आता था क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में ये बैठा था कि कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मुझे आएगा नहीं। और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं बहुत पढ़ता था। जितना शांत आज मैं हूँ, मैं पहले भी इतना शांत था। मेरी घूमने फिरने की, खाने पीने कोई आदत नहीं थी ना आज, लेकिन मैं बस पढ़ाई में कमजोर था, बहुत कमजोर था। 12th पास करने के बाद मेरा एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हुआ, BBA गया। वहाँ माहौल अलग मिला, जिले से बाहर गया। कोई वहाँ उस जिले में मुझे नहीं जानता था कि मैं कभी फेलियर भी रहा। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे नहीं जानता कि मैं फेलियर हूँ। मैंने पढ़ाई करी, 3rd ईयर आया, मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में भी टॉप करा, आगरा यूनिवर्सिटी। और फाइनल ईयर में जब BBA की कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, तो मैं अपने पूरे कॉलेज का पहला स्टूडेंट था जिसका प्लेसमेंट हुआ था। अक्टूबर का महीना था। मैं बहुत खुश था कि मैं फोन पर अपने पापा मम्मी को नहीं बताऊंगा कि मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कराया और मुझे प्लेसमेंट भी मिला है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सामने से जाकर उनको बताऊं घर। मैं उस टाइम आगरा मथुरा में था, गाजीपुर आकर बताऊं ताकि वो खुशी देख सकूं मैं उनके चेहरे पर। उस टाइम दशहरे की छुट्टी होने वाली थी, घर से बार बार फोन आ रहा था कि घर कब आओगे, घर कब आओगे। मैं घर आया। जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उनसे मिलने BHU में गया हॉस्पिटल में। पहले मुझे नहीं पता था कि वो एडमिट है। 45 ईयर्स उनकी एज थी। सोचा कल बताऊंगा जब पापा ठीक हो जाएंगे, यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। कल आया, पापा की तबीयत और खराब हुई, वो ICU में एडमिट हो गए। फिर सोचा कि पापा ICU में से निकल जब नॉर्मल वार्ड में आएंगे तब बताएंगे कि पापा मेरा प्लेसमेंट भी हो गया और मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करा। लेकिन अगले दिन पापा मर गए मेरे। मैं नहीं बता पाया, मैं नहीं बता पाया उनको कि मैंने पापा अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मैं नहीं बता पाया उनको कि पापा मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, मेरी नौकरी भी लग गई। उसके बाद मेरा MBA में एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ सिर्फ ना टॉप करा बल्कि मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। उसके बाद सैकड़ों पुरस्कार मुझे मिले। मेरे घर पर आप आएंगे तो चारों तरफ पुरस्कार पुरस्कार। लेकिन मैं अपने पापा को कभी एक भी पुरस्कार नहीं दिखा सका कि पापा आपने मुझे स्कूटर पर बैठा करके इतना संघर्ष करा और मैं आपको एक भी खुशी नहीं दी। सब अधूरा रह गया, सब कुछ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि आज भी इतने सारे पुरस्कारों के बीच में मैंने इसको संभाल कर रखा है, क्योंकि ये हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, भले ही झूठा रहा। और आज आप सबको बताने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर के आया था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब मुझे ये सारे पुरस्कार मिलते हैं, तमाम बहुत सारे मिले, तो हर मुझे प्यार करने वाला इंसान, जानते हैं आप लोग क्या कहता है?
मुझे हर प्यार करने वाला इंसान ये कहता है कि सिद्धार्थ अभी तो ये शुरुआत है तुम्हारी, तुमको और आगे जाना है। और जब मुझे देश का सबसे बड़ा युवा पुरस्कार मिल रहा था, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जब मैंने उसको प्राप्त करा तब भी मेरे सर ने मुझसे फोन पे कहा कि सिद्धार्थ मुझे तुमसे भी ज़्यादा खुशी खुद महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये पुरस्कार मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। और सर ने कहा था कि अभी ये शुरुआत है, अभी तुमको बहुत आगे जाना है। सर ने कहा था, मेरे इन्हीं सर ने कहा। अभिषेक है मेरे साथ, बोलता भैया आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं, क्यों इतना घबराते हैं? आप लोग बताइए, अगर एक पोटली आपको दे इस तरह की और उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के आपको भर कर दे और कहें कि गाजीपुर रेलवे स्टेशन से एक लोकल ट्रेन में ये ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर के आपको दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर जाना है, तो जब तक आप गाजीपुर स्टेशन से होकर के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली के नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप 100 बार अपने पॉकेट को चेक करेंगे और खोजेंगे कि वो सिक्के सोने के आपके पॉकेट में सुरक्षित हैं या नहीं है, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया, कहीं कोई गिर तो नहीं लिया। अब आप सोचिए कि आप सब जैसे बहुत सारे लोग मुझे प्यार करने वाले हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, तो मैं कैसे उन सभी लोगों को अपने पास से खो लूं? मुझे डर लगता है किसी भी काम को करने से पहले कि कभी गलती से भी मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे लोग मुझसे दूर हो जाए। इस वजह से मैं बहुत घबराता हूँ और हर एक काम को बहुत सोच समझ करके करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं ऐसा, सर को कहीं जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त फेलियर होगा तो कभी भी उसको फेलियर मत मानिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फेलियर कभी आगे नहीं जा सकता है। फेलियर आगे जा सकता है, और जब भी कोई फेलियर बच्चा होगा और उसको कोई फेलियर बोलेगा ना, तो उसको ज़रूर कहिएगा कि मेरे सिद्धार्थ भैया भी तो फेलियर थे ना, लेकिन देखो उनको जो देश का सबसे बड़ा युवा पुरस्कार मिला, और वैसा युवा पुरस्कार मेरे गाजीपुर के अपने स्कूल के किसी बच्चे को भी नहीं मिला, और ना मेरे गाजीपुर जिले के किसी आदमी को मिला, ना मेरे पूर्वांचल में किसी को मिला। और उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद सिद्धार्थ भैया मेरे दूसरे ऐसे आदमी हैं जिनको इतना बड़ा युवा पुरस्कार मिला, और सिद्धार्थ भैया मेरे फेलियर थे, फेलियर। ठीक है, कहोगे ना? तो आज अपना बोलना यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं आप सभी से कि अब तो आप सभी अपने सिद्धार्थ भैया को जानते हैं ना? हाथ उठाकर कहिए, क्योंकि हर एक बच्चे को मैं देखना चाहता हूं कि हर कोई इस फेलियर को जानता है मेरे स्कूल में या नहीं जानता है। जानते हैं ना? फेलियर को जानते हैं ना? बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा अपने विद्यालय में रहूँगा। और जो ये इतना बड़ा सम्मान आज मुझे यहाँ पर मिला है वो कभी नहीं मिल सकता। मैं प्रीति मैडम से अक्सर कहता फोन पे मैसेज पे कि मैडम मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे उसी दिन मिलेगा जब मुझे इस विद्यालय में बुलाया जाएगा। मेरे कुछ सर लोग ऊपर हैं, मेरे साथ पढ़े हुए मेरे बैचमेट भी इस स्कूल में हैं, उनसे मिल नहीं पाया। जाने से पहले बस एक इच्छा है कि मैं सबसे भेंट कर सकूं। धन्यवाद आप सभी। मैं धारवाड़ जिले में था जहां मुझे ये पुरस्कार मिला, कर्नाटक में। वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कई सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्री थे। और धारवाड़ जिला एक ऐसा जिला है कि जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जहाँ पर हुबली है और वहाँ पर भारत का तिरंगा बनाया जाता है, खादी से बना हुआ। और वही एक ऐसा एकमात्र गांव है और शहर है जो ऑथोराइज्ड है भारत का तिरंगा बनाने के लिए। वहाँ से मैं अपने सर के लिए ये खादी का तिरंगा लेकर के आया, और ये
मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि मैं अपने गुरु को ये पहना सकूं। थैंक यू सो मच। जब पुरस्कार की बात हो ही रही है तो एक हम भी छोटा सा देना चाहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर सर टू ऑनर मिस्टर सिद्धार्थ राय विद अ स्मॉल मोमेंटो ऑफ लव। Siddharth's so much emotional speech, it is really, he was crying, and in the heart I was also crying. And I was really happy that I could get this opportunity that I called Siddharth here. It is very difficult to praise the speech of Siddharth, very emotional. And it is really the speech, not speech, but it is the life history of Siddharth, जो कि बहुत दुखों से भरी हुई थी और फिर अंत जो है वो अच्छा हुआ। और आज सिद्धार्थ इस मुकाम पे है कि जहाँ पे हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट रह चुका। थैंक यू, धन्यवाद। I would request our director sir and our chief guest to distribute some gifts to our helping staff. We know that we cannot run our school without our helping staff. Our PNs, our sweepers, our buas, everybody. So on this occasion, I would like to request both of them to grace the occasion. To start with Ramawat Bhaiya. Ramawat Bhaiya, please आइए। शमशेर भाई, बाबर भाई, सुदर्शन भैया, मैं नाम ले रही हूँ, जो जो यहाँ प्रेजेंट है प्लीज आ जाइए। पप्पू भैया, उदय भैया, जुल्फिकार भाई, हीरा भाई, शमीम भैया, मकसूद भाई, मुन्ना भैया, विसर्जन भैया, विसर्जन भैया, ओम प्रकाश भैया, अनिल भैया, मुफीद भाई, कैश भाई, कैश भाई, अजय भैया, इकराम भाई, अरविंद भैया, श्यामदेव भैया, श्यामदेव, मंजूर आलम, मंजूर भैया आइए, गयासुद्दीन भैया, लक्ष्मण भैया, संतोष भैया, राज,
Mr. Siddharth and our director, sir. तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीता न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गुल बनके, मैं खिल जाऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊँ, तेरे खेतों में लहराऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जाते जाते भूल गया था आपको, ये मेरी किताब है। किताब का नाम भी क्या है? बदनाम सिद्धार्थ। क्योंकि जब आप भागते हैं ना स्कूल छोड़ करके तो बदनाम हो जाते हैं, वैसे ही जिंदगी के सफर में जब ऊपर बढ़ना होता है ना, और ऊपर बढ़ने के लिए जब आप भागते हैं ना, तब भी आप बदनाम हो जाते हैं। तो बदनाम सिद्धार्थ ये किताब है, और जब किताब के पीछे हिस्से पे जाएंगे तो ये मेरी पहली कहानी है जो मुझे, मेरी सबसे बड़ी समाज सेवा जो मैंने की वो इसी विद्यालय से करी, और जो मेरी सबसे बड़ी आलोचना हुई जब मैं मॉन्टेसरी के एडमिशन के लिए जब आया था, तो वो भी इस पर लिखा है
और मेरी किताब के सबसे पीछे वाले पेज पर लिखा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे लिए, मैडम से जुड़ी हुई चीज़ है ये। तो इसमें हर एक चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद आप सभी को अच्छा लगेगा। और मैं सर से चाहूँगा कि किसी दिन स्कूल में एक ऐसा स्टॉल लगा दिया जाए जहाँ से मेरे सभी छोटे भाई बहन इस किताब को खरीद सकें और पढ़िएगा, और शुरू से अंत तक पढ़िएगा, और ज़रूर अपने पापा मम्मी को पढ़ाइएगा, और उसके बाद उनका नज़रिया देखिएगा कि एक फेलियर के प्रति उनका नज़रिया कैसे बदल जाता है। ढेर सारा धन्यवाद आप सभी। Thank you, Siddharth, for presenting this book. And I wish that every child should be like Padnam Siddharth. It will be a great moment for me if you become like Siddharth, जिनके मन में जो है वो मानव सेवा हो, जन सेवा हो। आशा है कि तुम सब लोग भी इस में अपना योगदान दोगे और जन सेवा को अपना लक्ष्य बनाओगे। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन ये है कि सेवा करना लोगों की, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम लोग करना सिद्धार्थ की तरह से। थैंक यू। Now it's the time for the dispersal of the students. Ground floor, please disperse. First, second, third floor students